کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو گٹھری لے کے چلا کن چیزوں کی جو وہاں کے لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق تحفوں کی صورت میں سرکار کی خدمت میں بھجوائی تھی۔ احمد بن اسحاق قمی اس وقت پہنچا جب 11ویں لال ولایت تشریف فرما تھی، اور ایک محفل سجا کے بادشاہ معظم ہدایت کے سلسلے کو برقرار فرماتے ہوئے مسند طہارت پہ تشریف فرما، مسند امامت اور مسند الہیت پہ تشریف فرما تھے۔ گٹھری اس نے آ کے رکھی سرکار کے آگے، دائیں طرف چھوٹے سے شہزادے، ظاہری سن چھوٹا ہے ہمارے زمانے کے سلطان کا، دائیں طرف تشریف فرما تھے، معصومی کا سن تھا ظاہراً۔ تو احمد بن اسحاق قمی نے جب گٹھری رکھی تو سرکار نے پوچھا، جانتے تھے محمد تھے، جانتے تھے ہونے سے پہلے چیزوں کو جانتے ہیں، محمد کہتے ہی اسے ہیں۔ تو سرکار نے کہا یہ کیا ہے گٹھری؟ کہتا کہ آپ کے چاہنے والوں نے تحائف بھیجے ہیں۔ تو سرکار مولا حسن عسکری علیہ السلام نے احمد بن اسحاق قمی کو کہا تھا کہ احمد بن اسحاق قمی اس گٹھری کو اٹھاؤ اور میرے سردار کے آگے جا کے رکھو۔ یعنی اپنے شہزادے کو بادشاہ معظم نے یا سیدی، اے ہمارے سردار کا لقب معصومیت کے سن میں مخلوق مجمع عام کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی روایت میں ملتا ہے یا سیدی، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار۔ اس کے علاوہ بھی ائمہ نے اپنی زبان اطہر سے، لسان اللہ سے قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے پسند فرمائے، میرے سردار کے آگے رکھو۔ اتنی دیر میں سرکار نے احمد بن اسحاق سے گفتگو شروع فرمائی اور سرکار مختلف امور پہ بات کرتے رہے۔ اچانک احمد بن اسحاق قمی کے دل میں خیال آیا کہ وہ جو گٹھری تھی وہ میں نے پیش کی، وہاں کے چاہنے والوں نے تحفے بھیجے تھے۔ اچھا، یہاں یہ چیز کا اظہار میں بارہ ممبر پہ کرتا ہوں، عمران نقوی بھی یقیناً سنتے رہتے ہیں مجالس۔ بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں، بڑا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، جس کا اظہار تقریباً میں ہر ممبر پہ 8-9 ہزار مجالس میں کر چکا ہوں، اور بڑا ضروری ہے۔ شاید کوئی ایک تو بیٹھا ہو جو اس نقطے پہ پہنچ جائے۔ جب سرکار سے پوچھا گیا تھا، یہ دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ شیعہ ہے؟ فرمایا تھا نہیں، یہی سردار مولا حسن عسکری علیہ السلام یہی بات سے فرماتے ہیں یہ شیعہ نہیں، یہ محب ہے۔ تو اس نے پوچھا سرکار محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ تو بادشاہ معظم فرماتے محب اسے کہتے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ اسے کہتے ہیں جسے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو چاہنے والے اور ہوتے ہیں، جن کو یہ چاہتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور بھری تاریخ میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ان کو چاہنے والوں کی تعداد کثرت میں ہے، مگر انہوں نے جن کو چاہا وہ تعداد مختصر سی ہے۔ اس کا مطلب کچھ خاص کرنا پڑتا ہے کسی کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے، کسی کی نظروں میں ہر وقت رہنے کے لیے کچھ خاص کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھلا ساری زندگی نام جپتے رہیں، مولا مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، ہماری محبت ہے یقیناً گھڑتیوں میں شامل ہے، خمیر میں شامل ہے، لیکن محبت کامل تب ہوگی، میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا کسی نشست میں، محبت کامل تب ہوگی جب وہ بھی فرمائیں گے کہ تو بھی میرا ہے۔ بہرحال سرکار نے وہ گٹھری جو رکھی تھی اپنے شہزادے اور سردار کہہ کے اپنے شہزادے کے آگے، اور ادھر سے احمد بن اسحاق قمی کے دل میں خیال ابھرا کہ اتنی دیر سے ایک گٹھری ہم نے تحفوں کی پیش کی ہے، اور معصوم شہزادے نے گٹھری کی طرف مڑ کے دیکھا تک نہیں ہے۔ تو بے دل کے دل نے جب اس کے دل میں اٹھنے والی خیالوں کی اس کروٹ کو بھانپا، تو سرکار معظم نے، آقا مکرم نے، شہنشاہ منم نے احمد بن اسحاق قمی کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ کر اپنے شہزادے کی طرف دیکھ کے فرمایا، میرا لال، یہ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی خدمت میں تحفے بھیجے ہیں، آپ نے انہیں دیکھا نہیں؟ تو سرکار نے سوائے چند تحفوں کے ایک طرف کرنے کے بعد باواز بلند بھرے مجمع میں یہ فرمایا کہ میں ان باقی چیزوں کو کیسے ہاتھ لگاؤں جبکہ یہ مال حرام سے ہم تک پہنچے۔ ایک معصوم شہزادہ، یقیناً یہ بھی زمانے کا محمد اور زمانے کا علی ہے، جانتے ہیں حلال اور حرام کے معیار کو پرکھنے والی ذات کو امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں۔ بھیجنے والوں نے جس عقیدت سے بھیجا، جس محبت سے بھیجا، جس چاہت سے بھیجا، وہ ایک بات علیحدہ ہے، لیکن اس کا سورس کیا ہے،
اس کا وہ جہاں سے وہ آئے ہیں یا جہاں سے وہ خریدے گئے ہیں یا جہاں سے لائے گئے ہیں، اس کا سورس کیا ہے، یہ بھی حجت جانتی ہے۔ کوئی چیز حجت سے مخفی نہیں ہے، کوئی کہیں بھی کسی انداز میں کسی معیار پہ سرکار کی خدمت میں کچھ پیش کر رہا ہے کسی بھی صورت میں، بادشاہ معظم جانتے ہیں میں کیسے ہاتھ لگاؤں، یہ مال حرام ہے۔ تو میرا یہ اس چھوٹی سی بات اور مختصر سی بات گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا، چونکہ آپ نے مجھے کہا کہ سرکار کے اوپر علیہ السلام کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے، تو ضمن میں چونکہ بات سامنے آ گئی تو یہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، آج ہم جہاں جہاں بھی ہیں ہمارے لیے فاصلے ہیں، کوئی قطر بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی یورپ بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا بیٹھا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، ہمارے ہاں فاصلے ہیں، سرحدوں کے فاصلے ہیں۔ حجت کی نگاہ میں فاصلوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہے ڈنڈی مارنا، ڈانچ دینا، اور ہم کن کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی اگر کسی نے تحفے بھیجے امام کو، کسی نے اپنی کل جائیداد تھوڑی بھیجی ہے، کل جائیداد بھیجنے والی شتیتا جیسی خاتون ہے جس نے اپنی زندگی کا جمع پونجی ایک سکہ امام وقت کی خدمت میں بھیجا تھا، یقیناً انہوں نے کمایا ہوگا اپنی فیملیوں کے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اور اس میں سے انہوں نے سرکار کی خدمت میں کچھ بھیجا ہوگا۔ تو کیا خیال ہے جن کو حجت خدا قبول نہیں کر رہے، تو اولاد کو کھلانے والا لقمہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ بڑی سمجھنے والی، غور و فکر والی یہ بات ہے۔ ہم جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، اور خصوصاً وہ دوست احباب جو منتظرین حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں، ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنی ہوگی، ان کو قدم قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا، بڑا ٹائم لگتا ہے کسی مقام پہ پہنچنے میں۔ ایسے تھوڑا ہے کہ بندہ ایک منٹ کہے کہ میں مولا کا ناصر ہوں اور میں مولا کا منتظر ہوں اور میں مولا کا یہ، اور وہ ایک لمحے میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ اس کی تعریف کرتے ہوئے تو واقعی منتظر ہے، تو واقعی ناصر ہے، اسی طرح اپنے آپ کو اسی کشمکش میں رکھے۔ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہوگا، ہمیں بولنا سوچ سمجھ کے ہوگا، ہمیں قدم سوچ سمجھ کے رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی محفلیں سوچ سمجھ کے بنانی ہوگی، ہمیں اپنی گفتگو، اپنے حلقہ احباب، اپنے رزق کمانے کے طریقے اور ذریعے بڑے سوچ سمجھ کے اپنانے ہوں گے۔ ایک جملہ ذاکر ممبر پہ کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ مقدس گھرانے کے لیے کہتے ہیں کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزت بانٹنے والے گھر کے لیے یہ جملہ نامناسب ہوتا ہے، جو کائنات میں عزتیں بانٹے ان کے لیے بھلا کیا مصیبتیں ہیں یہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ جملہ ایک حوالے سے سچے اور مخلصین کے لیے ہے۔ اگر تمہیں اپنے ذکر اور فکر کے قابل بنا کے عزت کے لائق بنایا گیا، تو اب یہ بھی ذہن نشین رکھنا کہ امتحان بھی تکڑا ہوگا، مصیبت بھی تکڑی ہوگی، پرکھا بھی تکڑے طریقے سے جائے گا، چھانا بھی جائے گا زبردست طریقے سے، یہ بھی ذہن نشین رکھنا۔ تو بہرحال مختصر سی گفتگو کا جو مقصد تھا دوستوں تک امید ہے میں تھوڑا سا پہنچا چکا ہوں گا۔ جو سوالات اسی ضمن میں جو میں گزارش کر رہا ہوں، اگر کسی دوست نے کو پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں، نہیں تو پھر بات کوئی اور بات پہ آگے چلاتے ہیں۔ جی، ایک اہل سنت دوست کا میسج ہے کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو کیا وہ جب آئیں گے تو کیا صرف شیعوں کی مدد کریں گے یا ہم اہل سنت جو ہیں ہماری بھی مدد کریں گے؟ میں آپ کو اہل سنت دوست بڑے کھلے انداز سے بتاتا جاؤں، وہ شیعوں کے امام نہیں ہیں، وہ امام المسلمین ہیں، وہ رحمت للعالمین کی دستار کے وارث زمین پر، وہ کسی واحد فرد واحد کے لیے یا فرقہ واحد کے لیے یا مکتب واحد کے لیے نہیں ہے۔ جس نے زمین پہ آ کے انسانیت کی حقیقت کو پا لیا، چاہے وہ اصحاب کاف کی صورت میں کیوں نہ ہو، وہ کمانڈر امام زمان علیہ السلام شمار ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کس مذہب سے یا کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ صرف شیعوں کے لیے، وہ سب کے امام ہیں، وہ مسلمین کے امام ہیں، وہ مخلوقات خدا کے خیر خواہ ہیں۔ جس نے روح زمین پہ آ کے اپنی دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لیا، ان کے لیے تو وہ میں کہتا ہوں رحیمیت کا اظہار ہے، وہ مظہر ہے زمین پر، اور باقیوں کے لیے وہ رحمان کا مظاہرہ فرماتے رہتے ہیں۔ ایک کتاب میں واقعہ بھی ہے فہد بھائی، ہماری کتاب، ہمارے ہاں جو کتاب ہے معجزات آل محمد ہے یا ملاقات امام زمان علیہ السلام، اس کتاب میں واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے خدا کی بارگاہ میں توسل کیا، پروردگار عالم میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، کسی مشکل میں گھرا ہوں، تو خالق میری مدد فرما، غیب سے مدد فرما،
और अगर तूने इस मौके पे मेरी मदद न फरमाई तो मैं भटक जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। तो इस तवस्सुल के बाद वो रिवायत करता है कि कोई हस्ती आई, किसी सवारी पे आई, घोड़े पे सवार होकर आया और आके मेरा मामला उन्होंने आके हल फरमाया। और जब उन्होंने हल फरमाया तो मेरा दिल चाह कि मैं इनको सलाम भी अर्ज़ करूं और इनका शुक्रिया भी अर्ज़ करूं और इनकी खिदमत में गुजारिश भी करूं। मैंने सलाम किया, शुक्रिया अदा किया और मैंने इनकी खिदमत में गुजारिश की, आए बंदा खुदा, मैंने खालिक को पुकारा था, आप मेरी मदद को आ गए, यकीनन खालिक ने आपको मेरे पास भेजा है, तो मेरा दिल चाहता है कुछ लम्हात के लिए मेरे पास तशरीफ़ रखें। तो सरकार वहाँ से ये फरमाते हुए चल दिए, ऐ अब्द खुदा, तुझे नहीं मालूम इस वक्त रूए ज़मीन पर कितनी कायनात ने खालिक को पुकारा, मेरे नाना मोहम्मद को पुकारा, मेरे बाबा अली को पुकारा, मेरे पूरे घर को पुकारा, और सबकी पुकार पे मदद करना मेरे ऊपर वाजिब है। और वहाँ से वो बादशाह चल दिए। ये हमारी किताबों में वाक़या लिखा है। तो बिरादर मोहतरम, इंशाअल्लाह अगर आप कह रहे हैं कि वो आएंगे, तो ये जो लफ्ज़ आएंगे है, ये भी आपकी ज़बान पे उन्होंने अपनी करीमी से जारी फरमाया। आप अपने आप को हकीकी मुंतज़र में शुमार रखिए। तो बाकी इंशाअल्लाह जब जनाब ईसा जैसे नबी उनके पीछे खड़े होंगे तो फिर सारी कायनात मान ही जाएगी, भाई यही है जिनका सदियों से इंतज़ार था। एक मोमिन का सवाल आया है कि हम अपने इमाम के ज़हूर के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इमाम के ज़हूर में ताजील हो। बड़ी अच्छी बात है। उस मोमिन भाई को मेरी तरफ से सलाम पेश करें, उसने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। ये मेरे दिल की आवाज़ थी, कभी कोई ऐसा सवाल करे। कुछ सवालात हैं मेरे दिल में और मैं चाह रहा हूँ कि मोमिनीन कुछ इस किस्म के सवालात करें। ये बड़ा अच्छा सवाल किया। इसके लिए मैं सरकार का एक फरमान ही सुनाना चाहूँगा और इसी में एक बात और अर्ज़ करूँगा, बात इन तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएगी। बादशाह मुअज़्ज़म फरमाते हैं, तुम अपने अमाल को, अपने आप को इस तरह करो जैसा हम चाहते हैं, तो फिर मैं तुमसे मिलने खुद आऊँगा। ये इनके सवाल का जवाब है कि अगर हम अपने किरदार को, अपनी गुफ्तार को, अपने इजहार को, अपने कौल फ़ेल को एक जैसा कर लें और हमें देख के दुनिया कहे अगर ये कायम के मुंतज़िर हैं, अगर ये अली के चाहने वाले हैं, तो फिर इनका अली कैसा होगा, इनका कायम कैसा होगा। समझ लीजिए आप ज़हूर में ताजील का बायस बन चुके हैं। क्योंकि अगर इस चीज़ को अभी भी नहीं समझा पा रहा तो उस फरमान के ऊपर ले जाइए। एक ख़ता, एक गुनाह मोमिन की इमाम के ज़हूर को कुछ अरसा 40 दिन लिखा है, मैंने रिवायत में पढ़ा है, 40 दिन पीछे ले जाता है। अगर एक गुनाह और एक ख़ता और एक गलती मोमिन की इमाम के ज़हूर को 40 दिन ताख़ीर में लेके जा सकती है, तो एक मोमिन की नेकी, अच्छाई और बेहतरीन किरदार इमाम के ज़हूर को ताजील में भी तो ला सकता है ना। हमें अपने आप को जैसे शीशे के सामने बंदा खड़ा होता है और उसको अपना आप नज़र आ रहा होता है, ऐसे साफ शफाफ बनाना होगा। बातों से इफ़ाद पे कुछ नहीं होता। बातें ज़मीन आसमान की करना शुरू हो जाएं, मैं मासूमीन को क्या से क्या कहना शुरू हो जाऊं, मैं मासूमीन के आशिकों को क्या से क्या कहना शुरू हो जाऊं। मेरी बातें ठीक हैं, लेकिन बातों से कुछ नहीं होता जब तक मेरे किरदार से खुशबू ना आए, मेरी बातों का असर ना हो। फिर मेरी बातें किस काम की हैं? बातें करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जहाँ 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 मैंने पढ़ा किताबों में, बारहा यही जोर दिया गया, अपने किरदार को कमाल बनाओ, अपनी गुफ्तार को कमाल बनाओ, अपनी इजहार को बुलंदी पे ले जाओ, हमारे लिए बायसे जीनत बनो, बायसे हजीमत ना बनो। बारहा इस चीज़ का इजहार किया गया। मैं एक सैयद, हमारी जितनी भी आज़ादारी के हैं ना सिलसिले, जितने भी पुरसे से लेकर, मातमी हल्के से लेकर, जलूस से लेकर, कमाजनी से लेकर, कोई भी हमारा या हमारा मजलिस में बैठने से लेकर, हमारा तबरुक खाने तक, जुलजना की बाग पकड़ने से लेकर लम पाक उठाने तक, आप यकीन कीजिए हमारे अंदर इतनी पावर्स आती हैं, इतनी पावर्स आती हैं, इतनी ताकतें आती हैं, हम संभाल नहीं सकते। ये जब लकड़ी मस हो के गाजी के अलम के साथ बुलंद हो सकती है, तो एक मोमिन इस घराने की मोहब्बत के साथ मस हो के कमाल पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा। इतने कमालात हमारे पास आते हैं, इतने कमालात आते हैं। आप यकीन कीजिए डॉक्टर इकबाल ने अली वालों के लिए कहा था, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या है। ये कोई वजह थी ना, उसने कहा था, यानी मयार इतना बुलंद होना चाहिए था ना, उसने कहा। लेकिन शुम ये किस्मत हो ना सका। हम बैठ गए कीड़े निकालने, हम बैठ गए ग़ीबतें करने, हम बैठ गए गिले करने। फाद ने इतना अच्छा मोबाइल कहाँ से लिया, इमरान नकवी के पास इतनी अच्छी गाड़ी कहाँ से आ गई, फूल शाह साहब के पास इतना बड़ा कोठी कहाँ से आ गई। ये हमारे टॉपिक नहीं।
इतनी बड़ी पुरसादारियां आज़ादारियां करने के बाद भी हम इन चीज़ों में बैठ गए, तो हमने अपनी सारी जो रियाजत थी, जो खैर की खैरात हमें मिली, और यकीन कीजिए पुरसादारियों आज़ादारियों में इतनी खैर की खैरात मिलती है जो बिन मांगे अता होती है, वो भी नहीं संभाल सकते हम। ऐसे होता है जैसे रेत में मुट्ठी डाली, मुट्ठी में रेत डाली और फिर मुट्ठी खोली तो रेत नजर ही नहीं आई, ये कैफियत बन जाती है। हम खाली घरों को वापस जाते हैं और हम अगली मजलिस का, अगले मातम का इंतजार कर रहे होते हैं। हमारे ऊपर बड़ा करम फरमाया गया, हमारे ऊपर बड़ा एहसान फरमाया गया, हम समझ नहीं पा रहे, हम लाइट ले रहे हैं, हमने रस्मों तक महदूद कर लिया। तो ये बेहतरीन मौके हैं सरकार के काबिल बनने के लिए। इन चीज़ों के जरिए अपने आप हमें आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को परखना होगा, समझना होगा, वरना बहुत पीछे रह गए। वक्त हमारे पास कम है, बादशाह आने वाले हैं, हम बहुत पीछे रह गए, हम उन चीज़ों में घुस गए। मसलन मैंने कॉल की फात भाई को, फात भाई से कॉल के बाद सलाम या अली मदद, और फात भाई से मैंने पहला सवाल किया, फात भाई आप मुकस्सर हो या गाली हो, आपका अकीदा क्या है? ये मुंतज़िर इमाम ज़मान की सिफत नहीं है, मुंतज़िर इमाम ज़मान की सिफत ये फात तेरे घर कोई खाने का मसला तो नहीं यार, कोई दाने का मसला तो नहीं यार, बता यार, इमाम का सदका मेरे पास रखा, मैं भिजवा देता हूँ यार, कोई तेरे बच्चों की कोई शादी का मसला हो यार, मुझे बता, मैं हाजिर बैठा हूँ। फात भाई तेरे कोई बेल शेल पेंडिंग तो नहीं है यार, मुझे बता, मैं तैयार हूँ। मैंने फात से सवाल की तरह अकीदा किया, तो अली को क्या मानता है? और मेरी ड्यूटी लगी, मुझे मासूम ने कहा, जैसे मिंबर पे खड़े होके, बस क्या कहूँ इनके लिए जुमला, खड़े होकर कहते हैं मैं अब टेस्टर लगाने लगा हूँ, किसकी विलायत कितनी बुलंद है। जो टेस्टर लगाता है वो खुद 2.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपए लेके आते हैं, उसको क्या पता टेस्टर क्या होता है और ड्यूटी किसने लगाई है उसकी। मेरी बहन, जो पहली आपने बात की है, बिल्कुल ख़वातीन का एक बहुत बड़ा किरदार है इमाम के खरूज पाक पे इंशाअल्लाह, क्योंकि 313 मर्द कमांडर और 50 ख़वातीन कमांडर, 363 और आगे इनकी अवानीन व अंसारीन की एक बहुत बड़ी फ़ौज है। बादशाह का लश्कर को छोटा लश्कर नहीं, बहुत बड़ा लश्कर है, तो यकीनन शामिल हो सकती हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ बेटियों को खिताबात में मिंबरों पे खड़े होकर कहता हूँ, बेटा फ़िज़ा सुनते तो हो, खुश भी होते हो, बीबी की कनीज़ कितनी कमाल थी, लेकिन तुम्हारा सुनना उस वक्त तक सुनना ही सुनना रहेगा और सुन रहेगा जब तक तुम सुन के खुश होती रहोगी फ़िज़ा कैसी थी। हालांकि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, वो फ़िज़ा थी, मैं बनूंगी, उसने करके दिखाया, मुझे समझाया और मैं करके दिखाऊंगी। तो आपके लिए मेरी बहन बेटी यही है कि आप अगर चाहती हैं आप इमाम के लश्कर में शामिल हों, क्योंकि औरत की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तब भी आपकी ज़िम्मेदारी बहुत है। तो अब मुझे नहीं मालूम आप बच्चों वाली हैं या गैर शादीशुदा, उस हिसाब से मैं तफसीली बयान करूँगा, लेकिन ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा है। शादीशुदा बेटा आपके यकीनन औलाद होगी, तो आप अपनी औलाद को जब हर वक्त इमाम की याद में अपने आप को रखेंगी, तो आप अपनी औलाद की परवरिश अपने इमाम के लिए करेंगी, आप अपना उठना बैठना अपने इमाम के लिए करेंगी। और इसमें सबसे पहली बात आपके लिए यही है कि खुदा ने जो तुम्हारा बंधन जोड़ा है ना, तुम्हारा अक्द किया जिस मर्द के साथ, उसके साथ कोशिश करना तुमने कबूल है कबूल है और कबूल है कह के इस चीज़ को चलाना। ये ना हो कि कभी किसी चीज़ पे लड़ पड़ना, कभी किसी चीज़ पे झगड़ पड़ना, आज रोटी नहीं है, आज मेरे कपड़े नहीं हैं, आज हमसाओं के घर कबाब बन रहे हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की कनीज़ों की सिफतें बड़ी बुलंद हैं। वो सबसे पहले खालिक ने जहाँ उनका बंधन बांधा है, उस बंधन पे मजबूती से कायम रहती हैं, क्योंकि जिसको कबूल किया जाता है उसका शिकवा नहीं किया जाता। हमारे यहाँ माओ बहनों बेटियों में ये बात आम है कि मतलब कबूल है कहने के बाद भी रोले रोती हो। मेरे पास तो फूल शाह को पता है बड़ी तादाद में बहनें बेटियाँ 20-22 साल से आ रही हैं। मैं उनको यही समझा रहा हूँ, बेटा जिसके साथ अक्द हो जाए ना, उसका गिला नहीं करते, उसका शिकवा नहीं करते। अगर शिकवा और गिला करोगे तो तुम अली वालियाँ और जो अली को नहीं मानते उनमें तुम्हें फ़र्क रह जाएगा। तुम्हें जो मिल गया कोई बात नहीं, रेडी लगाता है ना कोई बात नहीं, थोड़ा कमा के आता है कोई बात नहीं, शुक्र करके रूखी रोटी खा के सो जाओगी, उससे बादरजहा बेहतर हो जो कोरमे खा के भी सुकून से नहीं सोए। आप शुक्र पढ़ के रूखी रोटी खा के सो जाओगी और मर्द को हिम्मत दिलाओगी, हौसला बढ़ाओगी। कोई बात नहीं, अगर खालिक ने इस घराने का सदका आज कम दिया है, कल खालिक और दे देगा, कुछ नहीं होता। अगर इस तरह करती रहोगी तो यकीनन इमाम की कनीज़ों में आप शामिल हो। जितना बर्दाश्त बढ़ाओगी, जितना सब्र बढ़ाओगी, अपनी औलाद की तरबियत सरकार के लिए करोगी, तो मेरी बहन बेटी आप अपनी इमाम की कनीज़ों में शामिल हो। और मेरा ईमान है, ये लोगों ने तादाद मुख्तसर लिखी हुई है, सिर्फ इतनी, मेरा ईमान है। ये बात मैंने लंदन टीवी पे बैठ के की थी। बाद भी मैंने कहा था कि अगर सारी रैयत
इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हो जाए तो सरकार के यहाँ वुसअत है, तंग नजरी नहीं है। अगर आज भी मखलूक अपना दुनिया में आने का मकसद समझ जाए और आले मोहम्मद की मोहब्बत का हक अदा करे तो सरकार के यहाँ तो वुसअत ही वुसअत है। मेरा इमाम अला कुल्ले शैन कदीर का जमीन पे मजर है, वो चाहे तो 313 को 3 अरब 13 भी कर सकता है, उनके यहाँ वुसअत है। अगर थोड़ी सी हिम्मत करके सफर करना शुरू कर देंगे तो आगे खैर ही खैर है, इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत है। देखें जी, ये एक सवाल नहीं, ये 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि सरकार क्या साहिब उल अमर अजल्लहु ताला फरज शरीफ दुआ के मोहताज है? बिल्कुल नहीं है मोहताज। ये तो मोहताजों के भी मुख्तार हैं। ये मोहताज कहाँ हो सकते हैं? जिनको दिन रात नाद अली पढ़ के निदा दी जाए वो भला मोहताज कहाँ हो सकते हैं? मैंने पिछले प्रोग्राम में भी गुजारिश की थी, मैंने कहा ये मोहताज दरूद भी नहीं है, मगर ये हमारी ज़बानों को पाक करने के लिए हम जैसों को दरूद पढ़ने के काबिल बनाया गया। तो ये मोहताज नहीं है, ये मुख्तार के भी मुख्तार है। ये हमसे दुआए ज़हूर मंगवा कर हमें बहुत सारे करम हमारी झोलियों में डालना चाह रहे हैं, बहुत सारी खैर हमारी झोलियों में। मसलन एक चीज़ का इजहार शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में किया हो, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर किया है तो, नहीं तो मैं दोबारा कह देता हूँ। बात यह है कि इमाम को दुआ करने का मतलब बाफरमान मासूमीन ये है कि इमाम बंदे के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि जो रखते जो किसी का नहीं है, खुदा उसकी उम्र तौलानी कर देता है। दुआए ज़हूर के फ़वाइद में से ये फ़ायदे लिखे गए हैं, मगर ये कतन समझ के ना किया जाए कि ये नौज़ बिल्ला मोहताज है तो हमें कह रहे हैं हमारे लिए दुआ करो। नहीं 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 नहीं, ये हम मोहताजों पे खैर की बरसात बरसाने के लिए रहम फरमाया जा रहा है। जब हमारी ज़बानों पे अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्न लश्करी अलैहिस्सलाम होगा तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि असद बुखारी फ़हद का गिला नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास दुआ के अलावा टाइम ही नहीं होगा कोई बात करने का। मैं असद बुखारी गिले से बच जाएगा, असद बुखारी ग़ीबत से बच जाएगा। फिर असद बुखारी जब दुआ करेगा यकीनन अपने आप को अपने इमाम के करीब महसूस करेगा, इतना करीब महसूस करेगा हर वक्त, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, मौला मौला आपके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं, मौला मैं बड़ा अधूरा हूँ, मौला आप हैं तो सब कुछ है, मौला वो वक्त भी ज़रूर दिखाइए कि जब आप हों और मैं आपके कदमों पर लिपट के आपसे अमल लेने के लिए अर्जी कर रहा हूँ। तो जब हर वक्त ये कैफियत जारी और सारी रहेगी तो फिर बंदा तो बहुत सारी नामुनासिब चीज़ों से ना सिर्फ बच जाएगा बल्कि कुर्ब इमाम का हकदार भी पाएगा। और रह गया दूसरे सवाल का जवाब कि कोई दूसरी ज़ात है कि जिसके ये मोहताज है, ये भी नहीं है। किताबों की रूह से तो है कि खालिक के अम्र के मोहताज हैं कि जब खुदा का हुक्म होगा, लेकिन इसमें भी एक राज है, जब ये खुदा के अम्र के मोहताज हैं तो फिर मशीयतुल्लाह क्यों हैं, फिर इरादतुल्लाह क्यों हैं? ये इरादतुल्लाह भी खुद हैं, ये मशीयतुल्लाह भी खुद हैं। ये बस किसी वक्त भी खैर का ऐलान हो जाएगा इंशाअल्लाह। मसला ये नहीं है, मसला ये है हम क्या इस काबिल बन सकते हैं जैसे वो हमें देखना चाहते हैं। मसला ये है, वो आने वाले हैं, वो ज़ाहिर हैं, वो दूर है ही नहीं। ज़हूर असगर हो चुका है, कभी इस पर भी बात करूंगा, ज़हूर अकबर और ज़हूर असगर। मामला ये नहीं है, मामला ये है क्या हम सरकार के आने पे मजबूरियों के बंधन में बंध के कहीं ये तो नहीं कहेंगे सरकार, जैसे आज इमरान भी कहा जाता है, पीर सही मेहरबानी करो पुत्र एक के दे दुआ फरमा दो जोड़ी हो जाए, पीर सही वो मकान 4 मरले दा दुआ फरमा दो 8 मरले दा हो जाए। मतलब कहीं सरकार ज़माना की ज़ाते गिरामी कदर को ज़हूर पे ये तो कहते हुए नज़र नहीं आएंगे, मौला हम तो पहले ही मसलों में घिरे हैं, पहले हमारे मसले हल कर, फिर जो हुक्म कर हम बताते हैं आपके पीछे आएंगे। कहीं ये कैफियत ना हो। असल मसला ये है, परेशानी जिस चीज़ की खाई जा रही है ना मुझे, जो मुझे बैठने नहीं दे रही, वो यही है। जो आपके साथ बैठा हूँ उसके पीछे भी यही परेशानी है। हम बड़े कमज़ोर हो गए हैं, हम अभी इताअत के मयार पे पूरा उतर ही नहीं पा रहे, हम छोटी छोटी चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे। अभी हम सालन में जायके तलाश कर रहे हैं, मज़ा है या नहीं है। जायके तलाश करने वाला इमाम का मुंतज़र कैसा होगा? वो कहाँ हो सकता है इमाम का मुंतज़र जो जायके तलाश करे? जायके से उसको क्या गर्ज? 4 उंगलियों का मामला है, यहाँ ज़बान से लेकर हलक तक का मामला है। शिकम में तो जो चीज़ आएगी वो तो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी। जायके से उसको क्या ताल्लुक? वो तो शुक्र ये पड़ता है मैं तो इस रोटी के काबिल नहीं था जो मुझे मिल गई, मैं जाके तलाश करूं। नमक कम है, रोटी गर्म नहीं है, ठंडी रोटी मुझे मिल गई, बासी सालन मिल गया, ये क्या किया? मैं हर वक्त घर वाली से लड़ता रहूं, बहनों से लड़ता रहूं, बच्चियों से लड़ता रहूं।